Hello students, I hope you all are fit and healthy and doing well in your studies. Right? We have already started with the chapter number 4. Right? In the previous part we have discussed the introduction. Today we will be discussing about the properties of material. Why we need to discuss the property of material? So let us understand with an example why we need to study this topic. The firstly, what if you try to make a tumbler with a piece of cloth? आई होप टम्बलर एवरीबडी नोज. टम्बलर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है विच कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल, राइट, विच इज यूज टू स्टोर वाटर, राइट. जनरली हम बाथरूम में यूज करते हैं. सो टम्बलर जो होता है, इफ आई प्रिपेयर इट विद अ पीस ऑफ क्लोथ, तो यस यू वुड बी थिंकिंग सर ये कैसी एकदम सिली बात कर रहे हो आप, राइट. इट इज क्वाइट सिली टू मेक अ टम्बलर विद अ piece of cloth, right. Similarly, what if I use paper for cooking? जो मैं मेटल की वेसल ले रहा हूँ उसके बदले अगर मैं पेपर की वेसल लेता हूँ, ओके, इफ आई टेक अ वेसल मेड अप ऑफ पेपर, देन ऑल्सो इट इज ऑफ नो यूज, राइट. इट वुड बी वेरी सिली कि सर ऐसा कैसे यूज कर सकते हैं, और पॉसिबल ही नहीं है तो, राइट. क्लोथ का आप टम्बलर बनाओगे तो पानी रहेगा ही नहीं अंदर. द वाटर will not be stored, or the liquid will not be, the vessel, the cloth tumbler will not be able to hold the liquid. Similarly, पेपर से आप अगर कुक करोगे तो पेपर ही जल जाएगा, क्या खाना बनाओगे, राइट. So this all are very silly, but the reason why I am taking this example because whenever we are using a particular object, right, we are using any particular object, we need to see what property of material is it, what is the property of the material that we are using, right. अगर हम material use कर रहे हैं तो वो material की property के कारण हम use कर रहे हैं, not just like a material. जैसे मैंने बोला मेरे को material लेना तो I can take a piece of cloth, but क्यों नहीं ले सकता tumbler बनाने के piece of cloth? because property ही नहीं है, right. it cannot hold water only. So whenever we are selecting or choosing an object, right, तो हम उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, राइट, सो दैट वी कैन डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज वेदर दैट मटेरियल हैज दोज प्रॉपर्टीज और नॉट. ठीक है. इफ दैट मटेरियल हैज दैट प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन माई यूज, देन ओनली आई कैन यूज दैट ऑब्जेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर use, right. So we will be discussing few properties of materials, right. There are various properties, so few of them we will be discussing in this part of the chapter. The very first property we will be discussing is appearance. Appearance, right. What is appearance? Appearance means by look, दिखने में कैसा है, how the object is by in terms of looking. ठीक है, दिखने में वो ऑब्जेक्ट कैसा है. तो से फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन से बाय लुकिंग कि भाई ये ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है, राइट, इट इज सॉलिड स्टेट, सो दैट इज व्हाट अपीयरेंस, मतलब दिखने में कैसा है. सिमिलरली देयर आर मटेरियल्स, ओके, लाइक मेटल्स. यू मस्ट हैव सीन मेटल्स में कौन से, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, राइट, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, these all are metals. What you have seen common in these things? What is common in these things? They all are shiny in appearance, okay. They all are what? They all are shiny in appearance, okay. So the property they have due to which they are able to shine, that property is called luster, okay. That property is called luster. So we can group objects based on the property of whether they are able to shine or not, right. If they are able to shine, then they possess the property of luster, okay. They possess the property of luster, right, means to shine. And apart from that, if the other objects like wood, if you take wood ले लो, right, प्लास्टिक ले लो, right, सॉइल ले लो, अर्थ, बराबर, सॉइल जो है वो ले लो, दोज ऑब्जेक्ट आर नॉट शाइनिंग. स्टोन ले लो तो इट इज नॉट नेसेसरी टू शाइन, रॉक्स, राइट.
so they won't shine. So there are objects which are shiny in appearance and there are objects which are shiny. अब देखो ज्वेलरी हम थोड़ा वुड की बनाते हैं, ज्वेलरी that we use, that we wear, क्या कभी वुड की बनती है वो? नेवर. व्हाई? बिकॉज मेरे को प्रॉपर्टी क्या चाहिए? द ज्वेलरी विच आई एम wearing, a person is wearing, he always wears for decorates, so that beauty और अच्छा लगे, राइट? पर्सन और अच्छा लगे वो पहनने के बाद, राइट? सो इफ इट इज नॉट शाइनिंग, सो इट इज ऑफ नो यूज, राइट? सो हमने क्या किया? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वी हैव सिलेक्टेड, राइट? सो लस्टर एंड इफ इट इज, इसके ऑपोजिट क्या होगा? तो नॉन लस्टर, non-luster, or you can say dull, right? Dull in appearance. एक ही प्रॉपर्टी है appearance की, but we can divide the objects into two groups. In these two groups, that is luster and non-luster, that is shiny and dull. तो you must be saying कि सर हमने काफ़ी बार देखा है कि जो एल्यूमिनियम वायर होता है या आयरन जो होता है, that after some days or some months or some years it becomes dull, है ना? वो क्या हो जाता है? डल हो जाता है. सो लस्टर कैसे हुआ, राइट? वो लस्टर कैसे हुआ? कॉपर की पाइप्स यू कैन सी सर कि वो डल हो जाती है आफ्टर सब सर्टेन टाइम. तो हाउ इट इज यू कैन से लस्टर? इट इज बिकॉज, से फॉर एग्जांपल एक कॉपर पाइप है, तो ये क्यों डल हो जाएगी? बिकॉज इन द एयर देयर इज ऑक्सीजन एज वेल एज मॉइस्चर. ठीक है, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी, और वो भी रेनी सीजन में ज़्यादा होती है, राइट? मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी, that is more in the air during rainy season. So क्या होता है? इसके जो surface है on that it starts reacting. Okay, those oxygen and moisture starts reacting. इसके साथ क्या होता है? chemical reaction surface पे take place, right? तो chemical reaction कारण क्या होगा? New compounds are formed, chemical change हुआ, and then what happens? They become dull because क्या होगा? chemical change हुआ है. So ऐसा नहीं बोल सकते कि luster नहीं है. If you want to study whether the object is luster or not, तो you can cut that surface. यहाँ से कट करो, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? कट करा तो दिस फ्रेश सरफेस विल बी देयर, दिस फ्रेश सरफेस इज देयर. यू सी दैट वेदर इट इज शाइनी और नॉट. समझ आया? अगर फ्रेश सरफेस शाइनी हुआ तो व्हाट आई कैन से? यस, इट इज लस्टर, इट possesses the property of luster, right? ओके, द अदर वे टू लुक आउट वेदर द ऑब्जेक्ट इज लस्टर और नॉट, अगर डल है तो उसको निकालना कैसा है? तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सैंड पेपर, राइट? एकदम रफ पेपर आता है सैंड पेपर, राइट? उसको गुजराती में भी से इट एज काट पेपर, राइट? काच पेपर. सो व्हाट वी यूज्ड टू, वी यूज्ड टू डायरेक्टली रब, उसको रब करो थोड़ी देर, तो व्हाट विल हैपन? जो मैंने बताया ना, अपर लेयर हैज अंडरगोन केमिकल चेंज ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. सो वो आप रफ करोगे तो वो निकल जाएगा. देन यू विल सी कि जो निकलने के बाद जो नया फ्रेश सरफेस है दैट इज शाइनी, जो एक्चुअली मेटल है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ appearance, right? Next we'll be discussing a very easy property, that is hardness, right? Hardness, a very easy topic. I hope this is self-explanatory topic. Hardness मतलब क्या होता है? Any object, if I am compressing, compress मतलब दबा रहा हूँ उसको, तो whether it easily gets compressed or scratched, या मैं इसको scratch करा तो easily scratch हो जाता है. Yes, sponge है, easily दबाव दब गया, right? Cotton दबाव दब गया, right? So objects which can be easily compressed or scratched, such objects are called soft objects. ठीक है? और उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड ऑब्जेक्ट. एक होता है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट विच कैन इजीली कंप्रेस्ड, दबाओगे उसको, कॉटन को, इतना कॉटन है उसको दबा दो तो छोटा भी हो जाएगा, कंप्रेस. ठीक है? एयर कैन बी इजीली स्क्रैच, उसको ऊपर ऐसे नाखून या किसी से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा खींचोगे तो आराम से फट जाएगा या स्क्रैच हो जाएगा. सो दैट इज सॉफ्ट ऑब्जेक्ट. अनदर वन दैट इज हार्ड ऑब्जेक्ट. ऑपोजिट ऑफ दिस इज हार्ड ऑब्जेक्ट. मीन्स क्या आएगा? ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और स्क्रैच. तो वो क्या हो जाएंगे?
हार्ड ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? So objects which are soft in appear, which are easily compressed are called soft object. Objects which are difficult to compress are hard object. Generally gases होते हैं which are easily compressed, so उनको soft बोलते हैं. Cotton we can say it as soft. Candles जो मतलब wax से बना होता है, right? That we can easily press, which is right. Clothes, ठीक है, उसको हम easily press करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, easily compress हो जाता है, right? Then what else we can consider? हार्ड ऑब्जेक्ट में स्टोन, मेटल्स जो हमने देखे, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन से स्टोन, व्हाट वी से, स्टील एज वेल. स्टील है, ग्लास है, दोज ऑल आर नॉट कंप्रेस्ड, दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, सो दे आर हार्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो वी हैव डिस्कस्ड टू प्रॉपर्टीज इन दिस क्लास, that is appearance and hardness. In the next class, we will be discussing the remaining topics, remaining properties, right? So, thank you all.